Non-random sampling or non-probability sampling. What is that? It is a sampling technique where the samples are gathered in a process that does not give all the individuals in the population equal chance to be selected, right? For example, pick and choose selection on the basis of choice from the population, right? This is the sort of sampling in which you are not going to give every sampling element of your sampling frame out of your population a fair chance to be the part of your sample, right? It means you are not going to pick the things as per the draw, as per the lucky draw, as per the draw that you are going to do. Rather, you are going to do pick and choose, right? You pick and choose the people, the individuals to get your sample. There are two possibilities of this sort of sampling. Number one, you do not have the exact amount of population. You are unaware about that, or you are not in a position to design a sampling frame. Number one, or secondly, you can get to know the exact number of population, and you are in a position to draw the sampling frame as well. But the nature of the subject demands that you should not do that, right? You should go for some non-random sampling technique in which you should focus upon some individuals who have some specific kind of information. So you're not going to take up the ordinary people just like what you did in random sampling, because once you do random sampling, so anyone could be your sample. So those people may be the ordinary one, right? But here you're looking some specific kind of information. You have some specific agenda in your mind, and keeping in mind that agenda, you are going to do this sort of sampling, right? So at times you have some specific purpose in mind, or at times you do not have the exact sampling frame, therefore you are going to move towards this sort of sampling, right? So it has there could be two possibilities behind selection of this non-random sampling technique. Either you are helpless to do that random sampling because you do not have the exact population or exact sampling frame, because therefore you are not in a position to give everyone a fair chance to be the part of your sample. Or second one, you can do all these things, but the nature of subject demands something else, right? You are having some specific purpose in mind, and you're looking for some specialized people, and that's why you're going to pick and choose those people. Or you are not in a position to do to give everyone a fair chance. That's why you have opted this non-random sampling technique, right? But overall in this sampling technique, you cannot or you're not going to give everyone a fair chance to be the part of your sample, right? Okay, it has 7 types. One is convenient sampling, second one is quota sampling, third one is purposive, fourth one is, wait a minute please, deviant case, sorry, snowball sampling. Fifth one is deviant case, sixth sequential, and seventh one is theoretical sampling, right? So let's talk about the first one. What is the uh, convenient sampling? Let's talk about this one. I have your book with you as well. मेरे पास किताब भी आप लोगों की. So let's talk about the first one. What is the convenient sampling? Wait a bit. असल में कन्वीनियंस सैम्पलिंग ऊपर थी इस किताब के अंदर, कहाँ कोई गड़बड़ था सिलसिला. सर काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटर, वो कह रहे हैं इंटर कर लें. मैं करता हूँ, एक सेकंड, मैं ज़रा कन्वीनियंस सैम्पलिंग देख लूँ कहाँ पे है.
कर लिए वो सारे? Okay. Here is the definition of convenient sampling. A non-random sample in which the researcher selects anyone he or she happens to come across. A non-random sample in which the researcher selects anyone he or she happens to come across, right? You are going to select anyone you happen to come across. This is convenient sampling. So this is the sample that are selected because they are accessible to the researcher. The samples are selected because they are accessible to the researcher. If you can access anyone, you are going to make the part of them as a part of your sample. Anyone could be happen to come across that can be the part of your sample. ठीक है? So subjects are chosen simply because they are easy to recruit. तो कन्वीनियंटली इजीली आप उनको सेलेक्ट कर सकते थे. दैट्स व्हाई यू हैव made the part, you have made them as the part of your sample, right? So this technique is considered as easiest, cheapest and least time consuming, because जो भी मिल गया आपने उसको सैम्पलिंग कर लेनी है. ठीक है, तो ये तब हम करते हैं बिकॉज वी आर अनअवेयर अबाउट योर एग्जैक्ट पॉपुलेशन. तो हम सोसाइटी में अपनी पॉपुलेशन ढूंढ रहे होते हैं और हर किसी को सैंपल का हिस्सा बना रहे होते हैं कि देखते हैं ये क्या कह रहा है, राइट? इस तरह की सैम्पलिंग के लिए कहा जाता है कि दिस इज द लीस्ट इफेक्टिव वन. लीस्ट इफेक्टिव कहा जाता है. रीजन बीइंग कि ये थारोली रिप्रेजेंट नहीं करती आपकी पॉपुलेशन को. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपने देखा जी स्ट्रीट इंटरव्यूज हो रहे होते हैं. टीवी शोज वाले क्या करते हैं, कैमरा माइक लेके निकल जाते हैं, जो मिलता है कहते हैं यहाँ जी आपका इस्लामाबाद की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसके बारे में क्या ख्याल है, सफाई सुथराई का निज़ाम कितना अच्छा है यहाँ पे. ठीक है, अब हो सकता है उस गली में कोई बंदा ऐसा गुजर रहा था जो इस्लामाबाद का नहीं है, जो कहीं रिमोट एरिया से आया हुआ है, लाहौर से आया हुआ है, आगे पीछे से आया हुआ है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा. तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी वर्दी नहीं होती. ठीक है, तो क्योंकि ये हैपहैज़र्ड सैंपलिंग इसको बोलते हैं, कन्वीनिएंट सैंपलिंग बोलते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं. एनीवन हैपन टू कम अक्रॉस, आपको मिला, आपने उसका इंटरव्यू ले लिया, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन भी चला दिया. ठीक है, तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, जैसे टीवी शो के ऊपर होता है कि वो हर बंदे को नहीं दिखाते. आपने देखा होगा वो उनको अपनी ऑडियंस भी गेन करना होती है, तो हमेशा से वो ऐसे बंदे को चूज करते हैं जो गुड लुकिंग हो. सबसे इंटरव्यू ले रहे होंगे मगर चलाएंगे उसी को जो गुड लुकिंग हो, दिखने में अच्छा लग रहा हो, कपड़े अच्छे पहने हो, बोलता अच्छा हो, या कोई बहुत ही कोई फनी हो, ऑड हो, उसको वो लेते हैं. हर किसी की इंफॉर्मेशन वो ऐड नहीं करते. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द लीस्ट एक्सेप्टेड, you can say representative sort of sampling of your population. But at the same time this is very, you can say, important and it has given its due weightage as well. वो कैसे कि एट टाइम्स आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में जान ही नहीं सकते हो, आप सैम्पलिंग फ्रेम ही नहीं बना सकते हो, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है कन्वीनियंट सैम्पलिंग करने के अलावा. जैसे मैंने अपने पीएचडी लेवल पे ना, मुझे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो यूथ है मैंने उसको एंगेज करना था, और कहीं भी से भी मुझे नहीं मिल सकता था कि यूथ की वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है. ठीक है, तो फिर मैंने क्या, मैंने कन्वीनियंट बेसिस के ऊपर यूथ को अप्रोच किया. ठीक है, उस यूथ को अप्रोच किया जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हो. तो मैं कायद यूनिवर्सिटी चला गया कि वहाँ चारों सूबों से लोग आते हैं, कोटा सिस्टम के ऊपर एग्जाम होता है, सॉरी सिलेक्शन होती है, एडमिशन होते हैं वहाँ. तो वहाँ चला गया, वहाँ सारे प्रोविंसेस की मुझे यूथ मिल गई. तो मैंने उनसे ये पूछा कि डू यू यूज सोशल मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस. उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं. तो उसको मैंने सैंपल का पार्ट बनाया. जिन्होंने कहा कि हम नहीं है, हम नहीं यूज करते, तुमको सैंपल का पार्ट मैंने नहीं बनाया. तो मैंने भी कन्वीनियंट सैंपलिंग ही की थी. ठीक है, तो कन्वीनियंट सैंपलिंग आप कर सकते हो, ये नहीं कि आप कभी नहीं कर सकते. एट टाइम्स यू आर हेल्पलेस टू डू दैट बिकॉज इसके अलावा कोई चारा ही नहीं होता. देखो ना, मुझे कहीं से भी कोई सैंपलिंग फ्रेम नहीं मिल सकता था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव यूथ कहाँ पे होती है, उनका कोई नंबर क्या है, उनकी लिस्ट क्या है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था ना. तो मैंने खुद से उसको लोकेट करने की कोशिश की, तो कन्वीनियंट बेसिस पे लोकेट करने की कोशिश की. इसके अलावा मेरे पास कोई और सूरत नहीं थी. तो दिस सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग कैन बी अडॉप्टेड बट यू शुड हैव अ स्ट्रांग लॉजिक फॉर दैट. ठीक है, तो वो भी इक्वल वेटेज की होती है. हाल तो ये कंसीडर की जाती है कि चीप है, इजी है और टाइम कंज्यूम नहीं करती और रिप्रेजेंट नहीं करती आपकी पॉपुलेशन को. इफ यू मेक इट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, यू आर मोर देन वेलकम टू गो फॉर कन्वीनियंट सैम्पलिंग एंड इट इज एक्सेप्टेड एज वेल, राइट? ये नहीं कि आपको क्वेश्चन करेगा ये किस तरह की सैम्पलिंग आपने कर ली. ठीक है, तो देखें ये सैंपल था, ये पॉपुलेशन थी. अब इसमें येलो भी है, ब्राउन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, स्काई ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है, पर्पल भी है, पिंक भी है और एक जो है ना ग्रे भी है. बट इसमें से ये देखें, आपको येलो नजर नहीं आ रहा होगा, ब्राउन भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको. ठीक है, तो
इस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है कि कोई भी आप पिक एंड चूज कर लेते हो। ये वो एग्जांपल जो आपको बता रहा हूँ कि जब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपकी क्लास में से सेल फोन शुरू हुआ ब्रेक टाइम में ट्यूसडे वाले दिन। अब मैं किसी अगर सैम्पलिंग फ्रेम बनाऊं और रैंडमली चूज करूँ तो हो सकता है वो लोग आ जाएं जो आपकी क्लास का हिस्सा ही ना हो, वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हो सकता है वो लोग आ जाएं जो ट्यूसडे को आए ही नहीं थे भले आपकी क्लास का हिस्सा थे, तो वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि सेल फोन किधर गया। सो आई नीड टू पिक एंड चूज, आई नीड टू अप्रोच दोज people who were present on Tuesday during break time in this class। तो मुझे बेहतर बता सकते हैं यहाँ से फोन किधर गया। क्लियर है? यस सर। सर एक बात है जी सर, जैसे ये पिक्चर है अगर इसमें दिखा रहे हैं तो सर अगर एक पॉपुलेशन हमारे पास, आपने चले क्लास वाली एग्जांपल दी विच इज लाइक रिलेटेबल, बट देखिए अब यहाँ पे ये पॉपुलेशन है और हमें पॉपुलेशन में से ही कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब एक पॉपुलेशन है, हम किसी स्पेसिफिक चीज पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई जी टॉपिक है हमारा और ये सारी हमारे पास पॉपुलेशन है, तो हम इसमें इज इट नेसेसरी कि हम जो है कन्वीनियंट में हमने सिर्फ कुछ लोग उठाने, लाइक जिस तरह आप बता रहे हैं कि इसमें हमने कुछ कलर्स के मतलब लोगों को छोड़ दिया है, जी तो जी इज इट नेसेसरी सर कि हम जो है कन्वीनियंट में जो है कुछ लोग जो हमारी 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 एसेसिबल हो हम उन्हीं लें या सबको हम ले सकते हैं? नहीं, सबको तो आप ले ही नहीं सकते ना। मैंने एग्जांपल दी थी कि ब्लड टेस्ट करना है तो पूरा ब्लड निकाल ही नहीं सकते आप, वो मुमकिन नहीं है ना। उसकी दो तीन वजूहत होती हैं, एक तो आपके बजट नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होती, टाइम भी नहीं होता। और चौथी बात है कि सबको क्यों स्टडी करना है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ कोई बनाते हो, कोई डिश बनाते हो, कोई रेसिपी बनाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने चखना है कि कैसी बनी है तो सारी खा के ही चखें। थोड़ी-सी भी टेस्ट करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। समझ रहे हो? तो इसलिए भी हम सैंपलिंग करते हैं कि हमें ये आइडिया सर, हो। सर देखो फिर हम एक रेड ले सकते थे, हमें अगर अंदाजा लेना है पॉपुलेशन में तो हम एक रेड ले लिया, एक वाइट, हमने ले चार सकते थे, मतलब उसकी। ले सकते यस सर। थे। डोंट डोंट यस बॉदर सर। अबाउट द नंबर ऑफ दीज़ कलर्स, ले सकते थे। इसने यही कहा है कि आप कोई से भी ले लें कन्वीनिएंटली। तो वो कन्वीनिएंटली ये ठीक है ब्राउन सर। भी आ सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि रेड ही क्यों आए हैं, समझ रहे हो? यस ब्राउन भी सर। आ सकते थे, येलो भी आ सकते थे, ये सारे रेड रह भी सकते थे। सिर्फ कन्वीनिएंटली ले लिया आपने, तो कोई से भी आ जाए। जैसे नहीं होता, जैसे एक वो जार है, मार्बल्स का जार है, आपने शेक किया और जो निकाले तो कोई से भी हाथ में आ जाए आपके। समझ रहे हो? तो ये वो सिचुएशन है। यस सर, आई गेट इट, क्यों? थैंक यू। क्यों? इसलिए कि यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का आइडिया नहीं है आपको, सिर्फ पॉपुलेशन का पता है। जैसे मैंने कहा मुझे पाकिस्तानी यूथ का पता था कि यूथ है अट्ठा जो है ना वो 15 साल से 28 जो 29 साल की डेफिनेशन है यूएन की, और कि आज की जो यूथ है पाकिस्तान में 15 से 29 साल तक होती है। ठीक है, तो मुझे पता है ये यूथ है और 12 करोड़ है। मुझे मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन कौन से 12 करोड़ हैं और कहाँ पे होते हैं वो। समझ रहे हो? तो मैं यस सैंपलिंग सर। फ्रेम नहीं बना सकता था, तो इसलिए मैंने कन्वीनियंटली जो मुझे मिलता गया उनसे पूछा आपकी एज ये है कि आप सोशल मीडिया पॉलिटिकली यूज करते हो तो ये फिल कर दो, तो कन्वीनियंटली कर लिया। जैसे स्ट्रीट इंटरव्यूज नहीं हो रहे थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी इस्लामाबाद। अच्छा मुझे बताएं इश्यूज क्या है? वो कहते हैं मैं लाहौर से हूँ। अगर तो उसने बता दिया लाहौर से तो फिर आपका काम नहीं बनता उसको पार्ट बनाए। हो सकता है वो ना डिस्क्लोज भी किया मैं भी इस्लामाबाद का हूँ, हो सकता है वो झूठ भी बोल सकता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होगा आपको लेनी पड़ेगी, तो मिस रिप्रेजेंट भी कर सकती है आपको वो। यू हैव टू मेक इट श्योर कि ये आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर सकते हो। द पॉइंट इज दिस ओनली। ओके सर। Okay, second one is quota sampling. A sampling in which the researcher first identifies general categories of the whole population। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने होल पॉपुलेशन को जानना है कि कौन सी है, फिर उसकी कैटेगरीज बना लेनी है आपने, एंड देन चूज केसेस फ्रॉम ईच कैटेगरी टू मीट अ प्री डिटरमिन्ड नंबर। फिर नॉन रेंडमली आपने उसमें से लोग चूज करने हैं, और एक प्री डिटरमिन्ड नंबर होता है कि इस कैटेगरी से मुझे 10 लोग लेने हैं, इससे 5 लेने हैं, इससे 3 लेने हैं। तो मुझे जो है ना टोटल 15 लोगों की सैम्पलिंग करनी थी फॉर इंस्टेंस। तो आपने प्री डिटरमिन्ड नंबर है कि इस कैटेगरी से मैं इतने लूंगा, क्योंकि आपकी रिसर्च ने कहा कि ये लोग ज्यादा होने चाहिए, आपकी रिसर्च ने बताया कि ये कम यूं तो जल जाएगा। ठीक है, तो प्री डिटरमिन्ड नंबर होता है आपके पास। तो दिस इज अनलाइक टू स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटाफाइड भी तो यही थी ना, कि आप पहले लोगों की कैटेगरीज बनाते हो और फिर उन कैटेगरीज को डिवाइड करते हो बाय द सैम्पलिंग फ्रेम, और उनकी परसेंटेज लेते हो। जैसे पंजाब की परसेंटेज हमने बात की थी कि 65% है, तो 65% हमने टोटल में से लिए थे, 100 में से 65 इंडिविजुअल पंजाब से लिए थे। इसमें ऐसा नहीं है, प्री डिटरमिन्ड नंबर है
जैसे सीएसएस एग्जाम होता है ना, वो कहते हैं जी हम तो 25-25 लोग लेते हैं, अगर मैं 100 लोग लेना है ना, 400 लोग चले सिलेक्ट होते हैं जी सीएसएस में हर साल ना। वो कहते हैं अगर 400 लोग लेने हैं ना, तो पंजाब के 100 लेने हैं हमने। वो नहीं देखते कि पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है। तो यही वजह होती है कि पंजाब के बहुत से लोग जो कि लेट्स से 1000 टोटल नंबर हैं, तो 800 भी लेके पंजाब के लोग मेरिट पे नहीं आ सकते कोटा की बेस के ऊपर। और कुछ लोग जो सिंध, केपी के या बलूचिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वहाँ से लोग कम कम्पीट कर रहे होते हैं ना लोग, तो वहाँ सीट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एजुकेशन का रेट वहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली लो है। तो वहाँ के बंदे अगर 500 ही मार्क्स लेते हैं ना, तो वो सीएसएस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और पंजाब वाला 800 भी लेके रह जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए लोग डोमिसाइल चेंज करते हैं। सेम हैपेंस विद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ भी कोटा सिस्टम पर एडमिशन होते हैं। तो पंजाब के लिए जो लोग होते हैं उनको बड़ा कम्पीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नंबर लेने पड़ते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। व्हेयरएज़ जो केपी के या जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो कम नंबर वाले भी आ जाते हैं मेरिट पे। समझ रहे हो कि लोग कम कम्पीट कर रहे होते हैं ना, ऑलरेडी उन्होंने प्री डिटरमाइंड नंबर रखा हुआ है कि हमने 100 ही लोग लेने हैं। तो कोटा जो है वो इस तरीके से होता है कि ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। जैसे नहीं कहा कि माजूरों के जी 2 सीटें हैं, जॉब्स आती है ना गवर्नमेंट में, लिखा होता है द माजूरों की 2 सीटें। अब माजूर तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, वो तो स्ट्रेटा की बेस पे तो नहीं ले रहे ना, आपने प्री डिटरमाइंड नंबर है कि हमने 2 लोग लेने हैं जी। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कैटेगराइज़ द योर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज होती हैं जैसे पंजाब, सिंध, सरहद, ये हो गया। फिर आप कहते हैं हमने प्री डिटरमाइंड नंबर पूरा करना है इस कैटेगरी से, 25-25-25 लोग लेने, 100 का सैंपल चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कुड डिवाइड अ पॉपुलेशन बाय द स्टेट दे लिव इन, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब, सिंध, सरहद। इनकम लेवल के ऊपर भी कर सकते हो कि हाई इनकम वाले में से इतने लेने, लो वाले इतने से, और बिलो जो पॉवर्टी लेवल से इतने लेने हैं, ठीक है। और एजुकेशन लेवल भी ले सकते हो कि हमें जी मैट्रिक के इतने लोग चाहिए, एफए के, बीए के, मास्टर्स के, एमफिल के, पीएचडी के इतने लोग चाहिए, ये रिसर्च कर रहे हैं हम। या सेक्स की बेस पे, जेंडर की बेस है, मेल या फीमेल में से हमें इतने लोग चाहिए, ठीक है। तो द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, कैटेगरीज एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप टू मीट अ कोटा। तो फिर हर एक कैटेगरी में से हम सैंपल लेते हैं और अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। दिस इज क्वाइट डिफरेंट टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी ऐसे ही होती है, कैटेगरीज बनती हैं, बट उनमें परसेंटेज की बेस पर बंदे लिए जाते हैं हर कैटेगरी से। यहाँ नहीं लेते हम, यहाँ ऐसे ही प्री डिटरमाइंड नंबर होता है कि हमने इस कैटेगरी से इतने ही लोग चूज करने हैं, भले उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हो उस कैटेगरी की। समझ रहे हो? तो ये कोटा था, तो उन्होंने मेल अबव 50 का इधर निकाल लिए, ठीक है ना, और में से चूज कर लिए उन्होंने, ठीक है। Yes, sir. Okay, next one is purposive sampling. A non-random sample in which the researcher uses a wide range of methods to locate all possible cases of highly specific and difficult to reach population. Your purpose, you have a purpose in mind, and keeping in mind your purpose, आप sampling करते हो। और जब purpose mind में होता है तो definitely you are looking for some specific cases, ठीक है ना। इस purposive sampling को judgmental और expert sampling भी बोला जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, judgment और एक्सपर्ट। जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, एक्सपर्ट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कि आपने सिर्फ जजेस को, जो जज होते हैं जिनकी जजमेंट वैल्यू रखती है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। आपके माइंड में ये पर्पस है, आप उन लोगों को लोकेट करते हो। जैसे आप रिसर्च कर रहे थे कि कैनिबल जो आए हैं ये इस तरीके से कैसे क्यों बिहेव करते हैं ना, तो फिर आपके माइंड में आता है कि हम साइकेट्रिस्ट को लेंगे या हम कैनिबल्स की फैमिलीज को लेंगे, तो वो हमें जजमेंट दे सकते हैं ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। या एक्सपर्ट्स को लेंगे जिनके ऊपर, इसके ऊपर कुछ ग्रिप है, कुछ नॉलेज है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उन एक्सपर्ट्स को चूज करते हैं। तो आप, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाईली स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन, ठीक है। जो स्पेसिफिक लोग होते हैं, चांदे के होते हैं, दे आर नॉट इजी टू अप्रोच, ठीक है, तो उनको मुश्किल से अप्रोच किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, मैंने पीएचडी पे सेकंड जो मेरी क्वालिटेटिव सैम्पलिंग थी वो पर्पसिव सैम्पलिंग थी। तो उसमें मैंने क्या किया कि मेरे माइंड में पर्पस ये था कि जो लोग, जो पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और यूथ के साथ इंगेज्ड हैं और जिनका जो नंबर ऑफ फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है, मैं उनको अप्रोच करूँगा, वो मुझे बेहतर बता सकते हैं। मेरे उनकी जजमेंट चाहिए थी मुझे इंटरव्यू के अंदर, वो एक्सपर्ट्स मैंने चूज़ किए, दोज हू आर हाईली फॉलोड बाय द यूथ, और यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यूथ के इश्यूज को, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनको डील करते थे, तो मैंने उन लोगों को अप्रोच किया, ठीक है। तो इसको पर्पसिव समथिंग बोलते हैं। कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ रिसर्च, द एक्सपर्ट्स इन्फॉर्म्ड केसेस आर सिलेक्टेड पर्पसली, ठीक है। तो पर्पसिवली ऐसे हम चूज करते हैं कि ये लोग थे, तो हमारे माइंड में पर्पस था कि हमें ये लोग चाहिए, ये वाले डार्क कलर्स के जो थे, ग्रे, ठीक है, तो हमने वो पर्पस के अकॉर्डिंगली चूज कर लिए,
ठीक है, क्योंकि हाईली स्पेसिफिक थे, ये डिफिकल्ट टू रीच थे, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, एक्सपर्ट थे ये लोग, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको अप्रोच किया। तो इसको कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, बिकॉज इन क्वालिटेटिव रिसर्च यू हैव सम पर्पस इन माइंड एंड बेस्ड अपॉन दैट पर्पस यू आर गोइंग टू चूज highly specific individuals who are having some expertise, who are having some, you know, value opinion, value information, तो हम उनको अप्रोच करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आफ्टर दैट स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको हम जो है ना नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी बोलते हैं या चेन रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। स्नोबॉल और चेन रेफरल, आप अपनी किताब पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम उन लोगों को चूज करते हैं, कोटा भी हो गया, फिर नीचे काफी करके हैं, एक सेकेंड, मैं दिखा दूँ आपको पेज इसका। Where has it gone? ये स्नोबॉल सैम्पलिंग ये है, ठीक है। तो स्नोबॉल जो सैम्पलिंग है ना, ये लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क चेन रेफरल रेपुटेशनल एंड रिस्पॉन्स ड्रिवन सैम्पलिंग, ठीक है, 3-4 नाम है इसके। अब ये उसकी एग्जांपल है ये कि, और ये मैंने यहाँ पे जो इमेज बनाया हुआ है कि एक बंदा है ना, वो दूसरों के साथ अटैच्ड है, तो आप उनको अप्रोच करते हो। आपने देखा फेसबुक का होम पेज देखा आपने, तो उसमें ना वो म्यूचुअल फ्रेंड्स आते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक है, दूसरा तीसरे के साथ लिंक है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब हो सकता है कि मैं जो हूँ, लेट्स से आई एम ए, हो सकता है मैं सी को ना जानता हूँ, बट बी की वजह से मैं सी को जानता हूँ कि ये जो सी है वो बी का फ्रेंड है और मैं भी बी का फ्रेंड हूँ, तो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है बी। तो हम दोनों जो की लिंकेज की वजह से मैं तीसरे को जानता हूँ जिससे मेरा कोई लिंक नहीं है, तो मैं उसके साथ भी नेटवर्क बन जाता है मेरा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हाउ वी डू सैम्पलिंग। क्या होता है, अ सैंपल इन विच द रिसर्चर बिगिंस विद वन केस, एक केस आप फाइंड करते जैसे ये किया मैंने, and then based on information about interrelationship from that case, उनसे इंफॉर्मेशन ली और उससे जो रिलेशनशिप में जो लोग थे इंटर रिलेट कर रहे थे, ये फिर ये, और उन लोगों को मैंने अप्रोच किया। आइडेंटिफाई अदर केसेस, मैंने आइडेंटिफाई किए एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन अगेन एंड अगेन। तो फिर मैं दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट, फिर एक बंदा आइडेंटिफाई करता हूँ, उससे रेलिवेंट बंदे आइडेंटिफाई करता हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, फिर एक बंदा आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उससे रेलिवेंट केसेस, फिर उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर। दिस इज हाउ आई मेक माई सैंपल। इसको स्नोबॉल, स्नोबॉल ना एक एनोलॉजी है, जैसे अगर आप स्नो पे जा रहे हो ना, तो एक एक बॉल बनाए उसकी, उसको रोल करें ना स्नो के ऊपर, तो उसके साथ मजीद बर्फ अटैच होती है तो बड़ी हो जाती है, रोल करते उसको, इट गेट्स बिगर एंड बिगर। तो यहाँ भी ऐसे है, जैसे आप सैंपल रोल करते जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिंक्ड है, नेटवर्क है उनका, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि व्हेन आई वांटेड टू गो टू मलेशिया फॉर डूइंग माय पीएचडी, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी रिगार्डिंग दी रेजिडेंस और इमिग्रेशन कैसे होती है सारी। तो मैंने एक बंदा देखा कि वो जो यूनिवर्सिटी मेरी थी वहां पढ़ता था, फेसबुक पे ना किसी मुझे बताया कि फलां बंदा पढ़ता है, मैंने आई रिक्वेस्ट सेंट हिम अ रिक्वेस्ट। जब उसकी ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मैंने देखा कि उसके जो म्यूचुअल फ्रेंड में मैंने देखा ना, सॉरी उसके जो फ्रेंड लिस्ट में मैंने देखी ना, तो वहाँ एक ऐसी पोस्ट थी जहाँ नीचे लोग कमेंट करे, तो मैंने वो लोगों को देखा जैसे स्टॉकिंग करते हैं, तो मैंने वो देखा तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया पढ़ते, तो मैंने उनको भी अप्रोच कर लिया। अब हुआ क्या कि आई आइडेंटिफाइड वन पर्सन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन पर्सन जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने दूसरे लोगों को ट्रेस किया, फिर उनको अप्रोच किया और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग समथिंग। अब वो नेटवर्क्स को अप्रोच करते हो बाय सिलेक्टिंग वन, by identifying one case and by approaching that one particular case. This is the sort of, you can say, investigation is, you know, practice in जो एजेंसीज होती हैं वो भी यही काम करती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे पुलिस है, एक बंदा पकड़ती है तो उससे इंफॉर्मेशन लेती है, उस इंफॉर्मेशन से वो उससे रिलेटेड दूसरे लोगों को पकड़ते हैं, फिर वो उससे रिलेटेड और लोगों को, पूरा एक नेटवर्क पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग इज डन, कि एक नेटवर्क होता है पूरा, पर उसकी बेसिस पे आप सैम्पलिंग करते हो, ठीक है। जैसे ये देखें ना यहाँ पे, जियान जो है वो एन का फ्रेंड है, ठीक है, एन का वो पैट फ्रेंड है,
और पैट के आगे ये बिल, बॉब और ये सारे फ्रेंड, बिल है और बिल के आगे ये फ्रेंड्स हैं। अब जैन जो है ना वो इनडायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू बॉब से भी कनेक्टेड है, मारिया से भी कनेक्टेड है, बिल से भी कनेक्टेड है, इन सारों से कनेक्टेड है क्योंकि वो एन से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये करते करते पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, समझ रहे हो? जो जिस फेसबुक होम पेज नहीं होता, तो आप देखिएगा कि इफ यू आर हैविंग सम ऑफ द फ्रेंड्स फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के लेट्स से आपके दो दोस्त हैं ना, ड्यू टू दोस टू फ्रेंड्स, आप लेट्स से आप नंबर में पढ़ते हो और आपके कायदे आजम के दो दोस्त हैं और कायदे आजम के दो दोस्तों की वजह से कायदे आजम के 50 लोगों को जानते होगे, समझ रहे हो? यस सर। तो आप उनको अप्रोच करते हो कि बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कायदा यूनिवर्सिटी, तो आप उनको अप्रोच कर लेते हो, आइडेंटिफाई करते हो। तो ये चेन रेफरेंस सैम्पलिंग बोला जाता है, इसको नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी कहा जाता है इसको। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट इज डेविएंट यस सर। केस सैम्पलिंग। डेविएंट केस, a sample specially used by qualitative researchers in which a researcher selects unusual or non-conforming cases purposely to provide increased insight into social processes or settings. Deviant case, the name is self-explanatory. Deviant case sampling, I mean you are looking for some deviant cases which are the unusual people, which are non-conforming people, mean they are not conforming the norms. ठीक है, वो conform नहीं कर रहे, means उनसे मुताबिकत नहीं रख रहे, उनसे different है, unusual हैं। ठीक है, तो आप जानबूझ के वो केसेस चूज करते हो कि ताकि आप देखो कि सोसाइटी में ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, एक सोशल सेटिंग ये किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप ऐसे इडियोसिंक्रेटिक लोग लेते हो ना, इसके अंदर इडियोसिंक्रेटिक लोग चूज करते हो जो कि सोसाइटी के नॉर्म से डिफरेंटली हट के बिहेव करते हैं, जैसे रेबल्स नहीं होते, रिबिलियन जो होते हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कि जब छोटे बाल रखने होते हैं तो बड़ा बाल बढ़ा लेते हैं, बड़े बाल रखने छोटे कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चूज करते हो जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करते, उनको प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि उससे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने देखा ये कैनिबल्स की अगर अभी हमने एग्जांपल ली, तो जो कैनिबल्स हैं दे आर डिफरेंट वन। तो आपने अगर कैनिबल्स की भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने फिर डेविएंट केस सैंपलिंग करनी पड़ेगी, कैनिबल्स को चूज करना पड़ेगा जो इन तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, दोज हु आर ईटिंग द ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन बॉडी को खा रहे हैं जो, तो वो डेविएंट केसेस आपने चूज करने के, ऐसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन लेके आप कुछ एक बड़ी वर्दी रिसर्च कर सकते हो, इंफॉर्मेटरी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम डेविएंट unusual pattern of the society, that what happens in this particular social setting, what happened in this social process के लोग ऐसे क्यों differently behave कर रहे हैं, तो you will have to select the deviant cases, those who are not conforming the norms of the society, those who are different, those who are behaving different, those who are idiosyncratic and they are radically different to the mainstream people of your society. ठीक है, तो आपने इनको अप्रोच करना है। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अच्छा ये अभी खत्म हो जाएगा, 2 मिनट है, हम दोबारा से कनेक्ट करता हूँ मैं आपको। ठीक है, वेट प्लीज, आई गेस वी नीड टू डिस्कस इट क्योंकि अभी ये लगा हुआ है उसके ऊपर, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। अच्छा मैं एक दफा 2 मिनट खत्म करता हूँ फिर आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा ये, ताकि रिकॉर्ड हो जाए सारा। Sequential sampling is it is a sample in which a researcher tries to find as many relevant cases as possible until time, financial resources, or his or her energy is exhausted, until there is no new information diversity from the cases is coming out। कि sequential sampling है, जब बस sequential point saturation point नहीं आ जाता ना आपका, आपके पास टाइम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, और या जब तक नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही या डाइवर्सिटी नहीं आ रही, आप तब तक सैम्पलिंग करते रहते हो। लेट्स से आपने 100 लोग लेने थे और आपने देखा था इस्लामाबाद में डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, तो आपके पास अभी टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही है केसेस से, डाइवर्सिटी भी आ रही है केसेस के अंदर, तो आप 100 से ज्यादा एक्सपेंड कर लोगे अपना सैंपल, 150 200 पे चले जाओगे, बिकॉज यू डू हैव इनफ टाइम स्टिल, राइट? ओके, देन लास्ट वन इज theoretical sampling, a sample in which the researcher selects a specific
time, location, or events to observe in order to develop a social theory or evaluate a theoretical idea. If you are going to challenge a theory, then you, on the basis of that theory, अगर आप बताती है कि theory इस time frame में, इस location में, event पे, इस in events पे बनी है, तो आप वो different time periods, location और event change करके observe करते हुए देखें ये theory exist करती है कि नहीं. So you can add up, you know, into that existing theory, or you can totally deny that theory कि इस situation में different में ये theory exist ही नहीं करती. ठीक है? So this is the last one, theoretical sampling. I'm going to finish it over and I'll take you once again on board. हम दोनों को लास्ट को दोबारा से सही डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है? I just did it for recording purposes because this is a recorded lecture and I wanted to, you know, record the whole lecture regarding non-random sampling. ठीक है जी. अल्लाह हाफिज़. Yes.